بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں ذکر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا، جو کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے مگر گجرات کا قصائی نہ صرف زندہ ہے بلکہ بھارت کا وزیر اعظم بن چکا۔ تمام دہشت گرد مسلمان ہیں اور نہ ہی تمام مسلمان دہشت گرد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت گاندھی نہیں، گاندھی کے قاتل کے نظریات پر یقین رکھتی ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت ہٹلر سے متاثر ہے۔ گجرات کے قصائی کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ دہشت گرد عناصر کو ہمارے ہمسایہ ممالک سے معاونت مل رہی ہے۔ بلوچستان میں عدم استحکام کے لیے غیر ملکی عناصر سرگرم ہیں۔ کراچی میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ابھی تک سیلابی پانی کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرین کی بحالی اور تعمیری نو کے چیلنج میں عالمی برادری کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے۔ پیٹرول 10 روپے جبکہ ڈیزل 7.5 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں بھی 10 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 227 روپے 80 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 171 روپے 83 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 169 روپے ہوگی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ 3 ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے 63 پیسے لیٹر کی کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل اس کو 10 روپے کی کمی کر کے فی لیٹر 169 روپے کی جا رہی ہے۔ پیٹرول میں 10 روپے کی کمی کر کے فی لیٹر 214 روپے 80 پیسے ہوئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل جو تھا 7 روپے 50 پیسے کی کمی کر کے فی لیٹر 227 روپے 80 پیسے پہ آ گئی ہے۔ مٹی کا تیل یا کیروسین آئل ہے 10 روپے کمی کے ساتھ 171 روپے 83 پیسے اس کی نئی قیمت جو ہے مقرر ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 16 دسمبر سے اس اگلے 15 دن کے لیے 31 دسمبر 2022 تک لاگو رہیں گے۔ ادھر شہریوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی کو ناکافی قرار دیا ہے۔ بیشتر افراد کہتے ہیں کہ کمی زیادہ ہونی چاہیے تھی جبکہ کچھ شہری 10 روپے کا ریلیف ملنے پر بھی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اگر پیٹرول سستا ہو گیا۔ پیٹرول سستے ہونے سے ہمارے اخراجات، ہمارے ٹوٹل جو بھی ہے ہم نے بہت اچھا ہمیں پیکیج میں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ نہیں کیا 10 روپے کم کر کے میرے بھائی $76 کیا کہتے پیٹرول ہے۔ جب عمران خان بیٹھا ہوا تھا، جب 115 ڈالر کیا کہتے پیٹرول تھا، تو جب تو اس نے 150 روپے رکھا ہوا۔ پھر بھی یہ سستا اور سستا کریں، یہ مناسب ریٹ نہیں ہے ان کے ابھی بھی۔ اب آپ یہ بتائیں 10 روپے چلیں سستا کر دیا پیٹرول کو، ٹھیک ہے 10 روپے سستا ہو گیا پیٹرول، اب باقی چیزیں جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عالمی منڈی میں پیٹرول جو ہے وہ اتنا سستا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، یہاں پیٹرول جو ہے 80 اور 90 کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ کرنی چاہیے کمی، کیونکہ جس حساب میں مہنگائی ہوئی ہے تو اس حساب میں تو دیکھا جائے تو کمی بہت کم ہے۔ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ 30-35 روپے کٹاتے، ذرا کوئی عوام کے لیے کوئی فائدہ ہوتا، ریلیف ملتا، اچھا انہیں۔ ریکوڈک منصوبے کا تاریخی معاہدہ حتمی طور پر طے پا گیا ہے۔ بیرک گولڈ کمپنی، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ریکوڈک منصوبہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے جس کی مجموعی لاگت $8 ارب ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی عدالت کی جانب سے عائد کردہ $6.5 ارب کا جرمانہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ معاہدہ آج سے نافذ العمل ہوگا اور کمپنی فوری طور پر کام کا آغاز کر دے گی۔ کمپنی کے مطابق ریکوڈک کے تانبے، سونے اور دیگر معدنیات کی پیداوار 2027 سے شروع ہوگی۔ معاہدے پر کمپنی بیرک گولڈ کارپوریشن نے نمائندے کے ذریعے دستخط کیے۔ وفاقی اور بلوچستان حکومت کے نمائندوں نے بھی دستخط کر کے معاہدے کی توثیق کی ہے۔ وفاقی حکومت اور پنجاب کے درمیان محاذ آرائی جاری ہے۔ عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کی JIT نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر نون لیگی رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ کے معاملے پر قائم JIT نے
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। उनके साथ साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और नून लीग रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ को भी समन जारी किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कहा गया मामले पर 17 दिसंबर को CCPO लाहौर ऑफिस में पेश हों और अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। इससे पहले JIT PTI के रहनुमा हमाद अजहर, यास्मिन राशिद और इमरान इस्माइल को भी बुला चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। सब NRO की गंगा में धुल कर पाक हो रहे हैं। इसहाक डार और सुलेमान शहबाज वापस आ गए। नवाज शरीफ भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। करप्ट खानदानों के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने तलबा से वीडियो लिंक खिताब के जरिए क्या कहा, ये देखते हैं। हमारा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। सारे अपने अरबों 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसहाक डार भी पाक हो गया। वो जो भागा हुआ था मकसूद चपरासी केस में 16 अरब रुपए की जो इनके ऊपर करप्शन थी, FIA ने जो पकड़ा था, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया। वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी। और उधर नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए। और हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करनी है। जो मैं हकीकी आजादी की कैंपेन मैं कर रहा हूं इस वक्त, और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मैं करता रहूंगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दे दिया। कहती हैं अवाम ने चेयरमैन PTI का चोर का झूठा बयानिया सुनना बंद कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के ज़रिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। नौजवान तकसीम और फसाद की सियासत से दूर जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि तोशाखाना ओपन एंड शट केस है। ये सिर्फ घड़ियों का मामला नहीं बल्कि अरबों रुपए के तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए गए। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान खान को अपनी चोरियों का हिसाब तो देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान नियाज़ी गैर मुल्की एजेंडे के तहत जमहूरियत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें खबरदार करता हूँ कि मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाएँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है हुकूमत को ब्लैकमेल करने में नाकामी के बाद इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम पर हमलावर होने पर तुले हैं। हमने इस निज़ाम पर एक मरतबा हमले को कामयाब होने दिया तो फिर ये बार बार अमल दोहराया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान हुसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे, मगर हम उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर और रावलपिंडी में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां निकाली। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने महंगाई और मईशत की बदहाली पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है। मुसलसल 9वें रोज़ PP 160 लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ महमूद रशीद की क़यादत में रैली निकाली गई, जो भेकेवाल मोड़ से शुरू होकर इचरे में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा हुआ। मियाँ महमूद रशीद ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, मईशत तबाह हो रही है। मुल्क बचाने का वाहिद हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। रावलपिंडी में भी शेख राशिद शफीक की क़यादत में राजा बाजार से रैली निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर से वक्त मांग लिया है। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम मुस्ताफ़ी अरकान से अलग अलग भी मिल सकते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। जबकि फवाद चौधरी ने वजाहत की कि अप्रैल से कोई रुकन तनख्वाह नहीं ले रहा। शक है हुकूमत निकलवा कर कहीं गैर मुल्की दौरों पर लगा रहे हों। हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए फारिग किया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो तहरीक इंसाफ ने उस निज़ाम से और उस पार्लियामान से लाताल्लुक होने का फैसला किया। उसके बाद हमने अपने इस्तीफे उस वक़्त के जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनको पेश कर दिए। कासिम सूरी साहब ने अपने दफ्तर को अहकामात जारी किए, ये मंजूर कर लिए जाएं और आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को। गवर्नमेंट ने हमारे इस्तीफों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। तो अगर इलेक्शन होने थे तो सभी के होते या किसी का ना होता।
एक मर्तबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब से मैंने ये खत शेयर किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं भेज रहा हूँ एज वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई, और डिप्टी पार्लिमानी लीडर हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें, अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहते हैं तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात को संजीदा नहीं है, अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफ़े दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। बुनियादी मकसद इनका सिर्फ ये है कि अपने केसेस ख़त्म कराना। सियासत में मुदाखलत जो है वो जब ख़त्म होगी तब भी पता चल जाएगा, जो हो रही है उसका भी पता है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान ने ज़कात छोड़ी, ना ही तोशाखाना की घड़ियाँ। कई तहाइफ जमा ही नहीं कराए गए। हर केस में अदालतों से स्टे क्यों लिया जा रहा है? चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? ये वक्त कौम के लिए सोचने का है। मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो ही सियासत होगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 10-10 कैरेट की अंगूठियों के ये जो दो अब आए हैं अंगूठियां हों, इसका सीधा वजीर आजम हाउस लेकर आए। ये दोनों गिफ्ट तोशा खाना में जमा ही नहीं हुए, वो फिर तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय सीधा वजीर आजम हाउस में वहां अपने पास रखा, खुद उसकी वैल्यूएशन करवाई। वैल्यूएशन क्या करवाई? 3 करोड़। कितना एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़। पाकिस्तान में 62-63 असल अंदाज में नफाज उसका होकर रहेगा। ये नहीं हो सकता कि खान साहब हैंडसम हैं और खान साहब बड़े मकबूल हैं तो उनके लिए 62-63 और है कोई, और जो पूरा पाकिस्तान है जो मेरे जैसे हैं उनके लिए 62-63 और है। खान साहब ना ज़कात छोड़ी, ना किसी का माल छोड़ा, ना घड़ी छोड़ी, ना अंगूठी छोड़ी, है सादक और अमीन। तो तलाशी देते क्यों नहीं हो? स्टे क्यों लेते हो? फॉरेन फंडिंग में स्टे, साइफर में स्टे। मैं आपको कोई इनकी 2 दर्जन स्टे सिर्फ पिछले कुछ अरसे में मुख्तलिफ इंक्वायरियों का जो शोहदा का मजाक उड़ाया गया उसमें स्टे, साइफर में स्टे, फॉरेन फंडिंग में स्टे, और उसके बाद तोशा खाना में आज भी अदालत ने फैसला दिया है कि वो अब चलेगा केस। उसमें भी कहते थे अदालत आप चला ही नहीं सकते। अगर अदालतों ने ये केस नहीं सुनने तो फिर अदालतों ने और क्या करना है? अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा है। अमरीकी वफ़द आज तोरखम बॉर्डर भी जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। अहम इलाकाई उमूर और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। इलाकाई इस्तेहकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफा के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ्द को इंसदाद दहशतगर्दी और पाक अफगान सरहद के इंतजाम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। सेंटकॉम कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा और सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों की भी तारीफ की। जनरल माइकल एरिक ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई की बचत के लिए कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया गया। प्लान की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा जिसमें वज़राए आला को भी दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। जावेद हुसैन की रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी बहाली और तवानाई ज़रूरियात के हवाले से इजलास। तवानाई की बचत के लिए कौमी हंगामी प्लान तैयार। प्लान की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास तलब करने का फैसला। अलामिया के मुताबिक काबीना के खुसूसी इजलास में वुज़राए आला को भी दावत दी जाएगी और सूबों के साथ मिलकर एनर्जी प्लान पर अमल दरामद होगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा, जबकि निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान का हिस्सा है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल $29 बिलियन सालाना है और ये रकम 6 खरब रुपए से ज्यादा है। बचत प्लान के नतीजे में 1 अरब 16 करोड़ डॉलर सालाना की बचत होगी। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 262 अरब रुपए से जायद बनती है। वफाकी वज़ीर रियाज सादिक कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए कर्ज देगा। ADB को पूरा एतबार है, तभी माहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं। ये जो तासुर फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता, या फाइनेंशियल क्रंच में है, डिफ़ॉल्ट में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन होती तो ये आज हमसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एग्रीमेंट ना साइन कर रहे होते। उनको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, तो तब ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 9 महीने में 2.7 बिलियन डॉलर समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने साइन किए हैं। माशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 550 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसस फरोख्त करने को तरजीह दी। यही वजह है कि अख्ताम पर मार्केट 557 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,179 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने से न सिर्फ घबरा रहे हैं, बल्कि कई इन्वेस्टर तो शेयर्स फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक्सचेंज कंपनियां ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रही हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियां, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। लाहौर में सब्जी और फलों की खरीदो फरोख्त में सरकारी निर्खनामों का अमल दखल ना होने के बराबर रह गया। खरीदारों से मनमाने निर्खों की वसूली मामूल का हिस्सा बन गया। सूरत हाल के हवाले से हर किसी की अपनी मंतक सुनने को मिलती है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। मुख्तलिफ अशिया की सरकारी निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त लाहौर में 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए गरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन अमली तौर पर अब सरकारी निर्खनामों पर खाल खाल ही अमल होता दिखाई देता है। खुसूसन फलों और सब्जियों की खरीदो फरोख्त में ये सूरत हाल बहुत नुमाया नजर आती है। प्याज ले रहा हूँ, ये 180 मिले हैं, कोई 200 दे रहा है। रियलिस्ट में नहीं मिलती, जो सरकार रेट देती है ना उससे रेट ऊपर ही होता है। इस तनाजुर में दुकानदार करार देते हैं कि असल मामला ये है कि उन्हें बड़ी मंडियों से जिस भाव फल और सब्जियां मिलती हैं वो इसी तनासुब से अपना मुनाफा रख कर उन्हें फरोख्त कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਓ। अगर जा के बड़े ताजरां ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ प्याज ਇੱਥੇ 50 रुपए किलो बिके। एक तो महंगाई की शदीद लहर और दूसरे सरकारी निर्खनामों पर अमल न होना शहरियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। दूसरी तरफ हुक्काम करार देते हैं कि गरां फरोशी पर काबू पाने के लिए इक़दामात का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहता है। शहरियों को लूटा जा रहा हो और प्राइसेस में डबल का फ़र्क हो, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट्स को कहा है कि आप इस पर फ़ाइन भी करें और इसमें जो बाकी कानून है उसको भी इम्प्लीमेंट करें। इस सूरत हाल के पैदा होने की वजूहात जो भी हों, इनका खमियाजा बहरहाल सारिफीन को ही भुगतना पड़ रहा है। हमसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि महंगाई पर इतनी रिपोर्ट्स चलती हैं तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं हो पाती। तो हमेशा की तरह आज भी हमारा यही जवाब है कि हमारा काम सिर्फ गलती की निशानदेही करना होता है। इक़दामात उठाना उनका काम होता है जो इसके ज़िम्मेदार हैं, और अगर वो इक़दामात नहीं उठा रहे तो मतलब अपने प्राइस से गफलत बरत रहे हैं। कैमरामैन नुमान इजाज़ के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। ज़िला दादू के इलाके काचू में सैलाब खेत खलिहान और मकानात बहा ले गया था। 4 माह बाद भी काचू के मकीन बेसरो सामानी के आलम में मौसम की सख्ती और माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कोयटा में साइक्लिंग के लिए
वेलोड्रोम मंसूबा 5 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। फंड्स की कमी को जवाब बनाकर मंसूबे को तब्दील करके विमेन अरीना का नाम दे दिया गया। कोयटा से अबरार अहमद की रिपोर्ट। पसमानगी का लफ्ज बलूचिस्तान से जुड़ सा गया। शोबा कोई भी, बलूचिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों से कहीं पीछे। यही हाल है सूबे में खेलों की सहूलियात का भी। मंसूबे तो कई बने लेकिन तकमील को ना पहुंच पाए। 2017 में 33वें नेशनल गेम्स के लिए अयूब स्टेडियम में साइकिलिंग वेलोड्रोम का मंसूबा बना। 3 करोड़ खर्च करके ट्रैक का इब्तदाई काम किया गया। 30 करोड़ दरकार थे। फंड्स देने की बजाय मंसूबा ही बदल दिया गया। वेलोड्रोम मंसूबा तर्क करके 10 करोड़ की लागत से विमेन एरिना बनाने का ऐलान हुआ। खवातीन खिलाड़ियों के लिए ऐलान करदा इस मंसूबे के लिए फंड्स भी मुख्तस हुए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आता। वुमेन के लिए जो ग्राउंड बन रही है वो भी इनकम्प्लीट है, तो मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह उस पर काम हो जाए ताकि वुमेन्स को भी मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये बहुत एक अच्छा इकदाम है क्योंकि ये शहर के अंदर है, तो जो गर्ल्स आना चाहेंगी वो भी इसमें आके अपनी ट्रेनिंग कर सकती हैं। स्पोर्ट्स हुकाम इस मंसूबे के मुतालिक कहते हैं जिसमें वुडन सरफेस होता है और उसको ऊपर से कवर किया जाता है और उसमें फिर स्पेक्टेटर्स की जगह होती है बैठने की, तो वो एक पूरा एक एरिना होता है। चूँकि हमारे इस वेलोड्रोम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है अगर हम इस पर मज़ीद पैसा खर्च करेंगे, तो क्योंकि ये उस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करता। विमेन एरिना में ख्वातीन को फुटबॉल, एथलीट्स, जिम समेत दीगर सहूलियत मुहैया करने का मंसूबा है। तहम ये कब मुकम्मल होगा और इससे ख्वातीन मुस्तफीद भी हो सकेंगे, इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। सरकारी खजाने से करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी साइकिलिंग ट्रैक का ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी बुनियादी वजह इस मंसूबे के आगाज़ के साथ मुकम्मल मंसूबा बंदी ना होना है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा।